Hello student, let us continue our chapter water. In the first part of this chapter we done the distribution of water and the water cycle. Then in the next part we start doing the movements of the water, that is the water circulation, the movements of the waters. These movements are of three types. The first one is the waves. We done it in the last part, the second part. Then comes tides, which we do today in this part, and current. This current also we will do in our this part on module. So let's start from tides. Tides, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. Means when water rise up and then goes down twice in a day, the level of the water goes up and down twice in a day, this one is called the tides. The tides are of two types obviously. The first one is the high tide, when water rising to its highest level. Low tide, when water falls to its lowest level, descends from the shore. Shore means the beach or the coastline. So let us understand the high tide and low tide through this diagram. This diagram is of the coastal area. This is a coastal area and this is a sea. As you can see here, this line, this is the natural line of water, but when this high tides comes, the level of the water goes up. It goes to this much. Means in the coastal areas the level of the water rising up. On other hand, when the tide is low, then the level of the water also falls. As you can see here, this is the low tide and the water comes to this side. So students, let us revise this thing in Hindi. टाइड्स मतलब जब पानी का एकदम से ऊपर जाना और नीचे आना. यहाँ पर जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द रिदमिक राइज, मतलब टाइम टू टाइम पानी को ऊपर जाना और नीचे आना. ये हर 6 घंटे में होता है. हर 6 घंटे बाद, मतलब 12 + 12, 6 + 6 + 6 + 6. हाई टाइड आया, फिर 6 घंटे बाद लो टाइड आएगा, फिर 6 घंटे बाद हाई टाइड आएगा, फिर 6 घंटे बाद लो टाइड आएगा. मतलब कि 2 बार तो हाई टाइड आया और 2 बार लो टाइड आएगा 24 घंटे में. तो इस तरह से हर 6 घंटे बाद, लगभग 6 घंटे बाद, जब पानी को ऊपर और नीचे जाना जो होता है उसको हम लोग टाइड कहते हैं. टाइड 2 तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है. हाई टाइड, जब पानी ऊपर उठ जाए, समुद्र का पानी जो है ऊपर उठ जाए. यहाँ पर देख रहे हैं हम जैसे कि इस डायग्राम में, दिस वन इज कॉल्ड द हाई टाइड. और जब पानी अपने लेवल से काफ़ी नीचे आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे लो टाइड. ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का होता है उसके कारण, और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स के कारण ऐसा होता है. ये सन और मून दोनों ही अर्थ को खींचते हैं, पर अर्थ का सॉलिड पार्ट तो वो लोग अपनी तरफ खींच नहीं पाते हैं, पर जो लिक्विड पार्ट है यानी कि वाटर, हाइड्रोस्फीयर, उसको ही अपनी तरफ खींच लेते हैं और इससे पानी ऊपर की ओर उठ जाता है. सो ड्यूरिंग द फुल मून एंड नो मून, that is the Amavasya days, the sun, moon and earth, as you can see here also in this diagram, the first part is sun, moon and earth. This is Amavasya while this is the full moon day. During both the time
they all are in straight line, and this is why the tides are at its highest, and this is called spring tide. But when moon is in its first quarter, or in the ocean water gets drawn diagonal by moon and sun, they both attract the water of the earth, and because of this the resulting in low tides comes, but its level is low. I hope you understand it. Now let us revise it again in हिंदी. देखो यहाँ पर सन है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अर्थ है. अब इस अर्थ में ये ऑर्बिट जो है अर्थ के चारों तरफ जो है मून चक्कर काटता है. जब मून पूर्णिमा में या फिर अमावस्या के दिन होता है, तो इन दोनों ही दिन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी कि मून और सन दोनों ही अर्थ के पानी को खींच रहे होते हैं. इससे अर्थ में दबाव ज़्यादा पड़ता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. इससे जो पानी यहाँ तक उठना था वो थोड़ा ज़्यादा होकर यहाँ तक उठ जाता है, और इसका एक ऑपोजिट फोर्स यहाँ पड़ता है, और जिससे जो है पानी ज़्यादा उठता है. पर जब मून यहाँ ना होकर यहाँ होगा, यानी कि सप्तमी अष्टमी को शुक्ल पक्ष की या शुक्ल कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को यहाँ पर होगा, तो उस वक्त मून यहाँ खींच रहा होता है, तो सन यहाँ से खींच रहा होता है. तो जो वाटर का जो लेवल होता है हाई टाइड का, वो इतना ज़्यादा ना होकर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इतना कम रह जाता है. टाइड तो हाई टाइड आ रहा है, पर यह हाई टाइड अब काफ़ी कम हो गया है. इधर तक तो इतना टाइड रहेगा, और यहाँ पर मून का भी जो है बस इतना रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा. मीन्स हाई टाइड तो आया है, पर हाई टाइड अपने लोएस्ट लेवल पर होता है, और पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पर हाई टाइड अपनी हाईएस्ट लेवल पर होता है. तो जब पूर्णिमा अमावस्या पर हाई टाइड अपनी हाईएस्ट लेवल पर होता है, उसको हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं. स्प्रिंग टाइड जो है कब आता है? फुल मून पे और नो मून टाइम पर आता है. तो दूसरी तरफ हाई टाइड जब अपने लोएस्ट लेवल पर होता है, तो उस वाले टाइड को हम लोग कहते हैं नीप टाइड. नीप टाइड भी एक हाई टाइड है, बट एट इट्स लोएस्ट लेवल, and that one is called neap tide. So I hope spring tide and neap tide, both the terms are clear.